हेलो। और भाई लोग यस, गुड इवनिंग अमन एंड स्वयं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, सो आई होप you are able to hear me. Yes or no? यस सर। Okay, so Dhyan was also supposed to join us. uh, let's see, just wait for a minute. Okay, उसको मैं जरा पूछ लेता हूँ. And we are going to begin our journey of 11th. Yes, Dhyan is here. So, Dhyan, am I audible clearly? Aman, Swayam? यस सर। Okay, good. So now, basically, यस सर। our subject accountancy, it is actually very easy, it is practical, and accountancy is applicable at most of the organizations. Now, why accounting? सोचो जरा कि accounting means to record the transaction. Transaction means पैसे में जो भी हम लेन देन करते हैं उसको properly record करना. So why accountancy is needed, वो मैं आपसे पूछता हूँ. Let's be practical. What do you feel? हॉस्पिटल में अकाउंटिंग की जरूरत है? Yes. Even in non-government organization, NGOs, we need accounting. So accounting is very important because government charges something based on the profit. अकाउंटिंग से ही पता चलेगा कि आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है. गेटिंग द पॉइंट? सो अकाउंटेंसी इज इंपॉर्टेंट टू नो द प्रॉफिट्स. बिजनेस में कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है वो माइंड से नहीं पता चल सकता. वी नीड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस प्रॉपरली इन ऑर्गेनाइज्ड वे, एंड हेंस अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. So now, chalo, let's have some interaction. Aman, any special activity during this vacation? What have you done? अभी तो सर कुछ किया नहीं, बस आरएसएस सर चालू था, अभी वो भी बंद है। Very good. Okay, so RSS will make you mentally strong. और कुछ books read करिए. Okay, inspirational या जो भी पसंद है वो. Okay. Then Yes, Swayam, what have you done during this time? Any special activity? Oh ho ho. Share market, learn stocks and join business with the date. Okay. So which business are you into? स्टॉक मार्केट के लिए मेरे पास बहुत सारे क्या है चैनल्स के नाम है. प्लास्टिक एंड वेयर हाउसिंग. वेरी गुड, ग्रेट. सो ध्यान, yesterday we had a discussion. Dhyan is fond of reading. Harsh Chain. Harsh, अभी आप hello. Sorry sir. Yes sir, sorry. If you want to learn 11th again, then you are most welcome. No sir, sorry. Okay sir, bye. Okay, bye bye. Actually, Harsh Chain is the student of mathematics and he's from our school. Right now he is in 12th. Okay, he has joined me for mathematics. So now please make a heading. We start with this very important and easy subject, which is accountancy. Okay, and if possible you can have some interaction. So chat box में आप लिखोगे it's fine, but if you can speak out तो मेरा भी अकेलापन दूर हो जाएगा and I will be able to understand. So in accountancy पहले हम समझते हैं कि कैसे अकाउंटिंग होती है. We will start with simple transaction and then gradually we will understand. So in accountancy, basically transactions are recorded. You can make the notes.
जैसा यहाँ स्क्रीन पर है वैसे आप क्या है नोटबुक में लिखिए. सो इन अकाउंटेंसी transactions are recorded. Now, to be very precise, financial transactions are recorded. It means when there is use of money. Okay, so like जब बिजनेस में which are the main activities? बिजनेस में हम क्या क्या करते हैं जहां पर पैसे आते हैं या जाते हैं? Can I say we purchase? Yes. So financial transactions are recorded like purchases, sales, expenses, etc. Okay. So now this was the first point about accountancy. Second point. आप पहले समझ लीजिए, then I will give the time to write. So Dhyan, can you speak out? Yes, sir. हाँ. So just wanted to confirm that you are there with us. Okay. So in accountancy, we follow double entry system of accounting. Basically, there are two systems of accounting, single entry and double entry. Right now, basically world across, double entry system of accounting is followed. So double entry system of accounting हम follow करते हैं. Now you must be confused, sir, what is double entry system of accounting? In double entry system of accounting, there are two aspects. There are two aspects of each transaction. There are two aspects of each transaction. One aspect is called debit and another aspect is called credit. Acha, have you understood, have you learned the concept of debit card? Are you using debit card? Yes or no? Yes, sir. And some of you must be using credit card. So what is the difference between debit card and credit card? क्या होता है? किसमें खुद के पैसे हैं, किसमें लोन किसी बैंक से लिए हुए पैसे हैं? सर डेबिट कार्ड में सर खुद के पैसे होते हैं सर, और क्रेडिट कार्ड में सर वो जैसे Yes, जो लोन के loan. पैसे होते हैं. परफेक्ट, वेरी गुड. बट यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट वो कार्ड वाला नहीं है, वो अलग है. दो इट हैज कनेक्शन विद दिस. ओके. नाउ डेबिट एंड क्रेडिट आर द एस्पेक्ट्स एंड शॉर्ट फॉर्म यूज होता है डी कैपिटल आर स्मॉल देन डॉट, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म, एंड क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म है सी कैपिटल आर स्मॉल एंड डॉट. सो डेबिट एंड क्रेडिट शॉर्ट में ये शॉर्ट फॉर्म्स लीगली अलाउड है. यू कैन यूज दिस डेबिट एंड क्रेडिट. नाउ हर ट्रांजेक्शन में डेबिट एंड क्रेडिट छुपे हुए हैं, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. देखो आज के सेशन में आपको अच्छे से समझना है. 1 और 2 सेशंस के बाद आपको धीरे धीरे पूरी चीज क्लियर होती रहेगी. ओके. अच्छा, इफ साइंस स्टूडेंट से पूछा जाए ये डेबिट क्रेडिट हाइड कर दो, सिर्फ ये बताओ, तो उनको शायद लगेगा ये है डॉक्टर और ये है कंपाउंडर. ओके. सो नाउ थर्ड पॉइंट, वी विल अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. एंड अकाउंट्स का शॉर्ट फॉर्म ऐसा है ए कैपिटल स्लैश सी स्मॉल. ओके, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अकाउंट. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड जिसमें से फर्स्ट टाइप
is account of expenses. So I will write expenses account. So चलिए, आपके बिजनेस में कौन से एक्सपेंसेस समथिंग मीन्स खर्चा, तो कौन से खर्चे होते हैं? यू गिव मी द एग्जांपल. सबसे रॉ मटेरियल मशीनरी. यस, बट यू नो मशीनरी जो है वो एक्सपेंस में काउंट नहीं होगा. नाउ देखो क्या होगा, कैन आई से मशीन को फ्यूचर में आप बेच सकते हो एंड यू कैन अर्न Yes. समथिंग. तो and machine will be there in the business for 1 year or many years. Many years. तो वो खर्चा नहीं है, खर्चा ही समथिंग जो लौट कर नहीं आएगा. ओके और जिसका बेनिफिट फ्यूचर में भी नहीं है. मशीन तो फ्यूचर में भी चलेगा, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा एसेट में. एक्सपेंस मीन्स जो आप स्पेंड कर रहे हो, क्या क्या टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं. एग्जांपल, Advertisement. yes, very good. So advertisement expense account, ये बहुत सारे अकाउंट ओपन होते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट. और कोई एग्जांपल? अरे बेसिक, बिना बिजली के आप काम नहीं कर सकते. सो आपके घर में या स्कूल में हर जगह पर कौन सा एक्सपेंस होगा? Electricity. Yes. So electricity expense account. अच्छा, फॉर कम्युनिकेशन, बिना किसी से बातचीत किए आप नहीं कर सकते बिजनेस. सो कैन आई से टेलीफोन. टेलीफोन या आज के टाइम पे मोबाइल है. सो मोबाइल का रिचार्ज होता है ना, हम मोबाइल के रिचार्ज की बात कर रहे हैं. सो इट्स टेलीफोन या फिर मोबाइल एक्सपेंस अकाउंट. एंड परफेक्टली बिना लोगों से काम नहीं होगा. यू नीड टू हायर सम पर्सन्स और उनको पे क्या करना पड़ेगा? अमन ने सही कहा है, सैलरी. सैलरी के बाद एक्सपेंस नहीं लिखते. इट इज अंडरस्टूड कि सैलरी एक एक्सपेंस है. सो सैलरी अकाउंट. बोलो. सर टेलीफोन मोबाइल में तो सर्विस सेंटर भी आ जाएगा ना? यस, अगर आप मोबाइल रिपेयर करवाते हो, ओके, सो दैट इज ऑल्सो अ रिपेयर एक्सपेंस, खर्चा ही है. नहीं सर, जैसे सर्विस सेंटर, जैसे कोई प्रोडक्ट या है वो है तो उसके लिए होता है ना कि कॉल ऑन दिस नंबर इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन यूजिंग इट. हाँ, सो सर्विस सेंटर फॉर एग्जांपल, आपने मोबाइल लिया, आप सर्विस सेंटर कब जाओगे? व्हेन यू हैव सम इश्यूज. बराबर. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सर्विस सेंटर से पैसे जब आप पे करते हो देन इट इज योर एक्सपेंस, तो वो इसमें काउंट होगा मोबाइल एक्सपेंसेस में. अच्छा, ओके सर. ओके, तो ये समझना बहुत इजी था. एंड व्हाट कुड बी द ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंस? दूसरे टाइप के अकाउंट होते हैं, इट इज कॉल्ड इनकम अकाउंट. ओके, बिजनेस में कुछ इनकम भी होती है. कैन यू टेल मी क्या इनकम के अकाउंट हो सकते हैं इन ए बिजनेस? पैसे कहां से आते हैं बिजनेस में? प्रॉफिट तो एंड में बचता है, लेकिन प्रॉफिट से ज्यादा, प्रॉफिट से पहले क्या होता है? हर किसी को कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है. यस और नो? तो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स के इनकम के अकाउंट्स में क्या होगा? सेल्स अकाउंट. ओके, इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट में तो पैसे जाएंगे. बिजनेस में व्हेन यू सेल समथिंग यू गेट मनी. तो जो आप बेचते हो दैट इज योर सेल्स अकाउंट. अच्छा, अनदर एग्जांपल, कैन आई से समटाइम्स वी अर्न कमीशन फ्रॉम ए बिजनेस? Yes, sir. No. So if I get some commission, let's say मैं estate broker हूँ, okay, real estate agent. So when I make a deal, मैंने सौदा करवाया, बायर सेलर को मिलाकर एक प्रॉपर्टी बेची, तो I get commission. So
it is commission received account. So this will be your income. Business में पैसे आएंगे, but ये commission received खर्चा भी बन सकता है. अगर आप किसी को कमीशन पे कर रहे हो तो कैन आई से वी विल राइट कमीशन पेड अकाउंट. तो याद रखो रिसीव्ड या पेड वर्ड से इनकम या एक्सपेंस डिसाइड हो सकता है. इफ कमीशन इज रिसीव्ड तो वो इनकम है. इफ कमीशन इज पेड तो वो क्या बन जाएगा? एक्सपेंस. अच्छा, इफ यू हैव द प्रॉपर्टी एंड यू हैव गिवन योर प्रॉपर्टी ऑन रेंट, आपके पास एक घर था रेंट पर दिया, सो व्हाट टाइप ऑफ इनकम विल यू हैव? कैन आई से यू विल रिसीव रेंट? यस. सो रेंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट इज योर इनकम. बट मुझे बताओ ये रेंट कब खर्चा हो सकता है? इन विच सिचुएशन? when we buy when we rent मतलब रेंट पे लैंड लेते हैं फॉर सेटअप ऑफ फैक्ट्री और एनीथिंग. Yes. So when we set something on a rental basis, अगर हम रेंट से कुछ प्रॉपर्टी लेते हैं तो रेंट पे करना पड़ता है. इन दैट केस रेंट पेड अकाउंट क्या बन जाएगा? एक्सपेंस. सो आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो Yes, sir. यहां तक आपको अगर क्लियर है तो रेज योर हैंड इफ यू आर क्लियर टिल दिस. ओके, गुड. अच्छा, एक काम करेंगे. आई बिलीव दैट एक्सप्लेनेशन पार्ट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो मैं अभी जो लिख रहा हूं ये फाइल आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में. एंड कैन आई से यू कैन डू राइटिंग पार्ट सो दैट यू विल बी एबल टू रिवाइज वंस अगेन. चलेगा इनिशियली? यस सर. यस. Yes, sir. ओके, चलो. क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम. स्वयं बोलो क्या क्वेश्चन है? ओके, नाउ एक काम करता हूं, यहां पर मैं एक टेबल बनाता हूं. ओके, हियर आई विल डू कंपैरिजन. आई विल राइट हियर expense account and here I will write income account. Same type के नाम में we can have income and we can also have expense. अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा है and you know you can ask any question. If I know the answer मैं आपको दूंगा, अगर नहीं आता हो तो मैं सर्च करूंगा या फिर आपको सजेस्ट करूंगा कहां से आपको आंसर मिलेगा. तो क्वेश्चन है, सर आर द ब्रांड रेवेन्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैलरी? ओके, तो स्वयं कैन यू प्लीज डिफाइन ये ब्रांड रेवेन्यू आप यानी कैसे बात कर रहे हो, कौन से कंटेक्स्ट में? लेट्स से आई एम वर्किंग अंडर यू, आई एम गेटिंग सम सैलरी. So please note, एक है salaries are always given as minimum. Salary ज्यादा पे नहीं करते. Okay, and as per one survey, it is found that कि जितना आप contribute करते हो उसका 1/5 या उससे भी कम आपको सैलरी पे की जाती है. It means अगर आप 50,000 का फायदा करवाते हो कंपनी को तो then 1/5 of this यानी 10,000 सैलरी आपको पे होगी. इट्स ए जनरल रूल. ओके, ओनर जो है, मालिक है, वो ज्यादा पैसे कब कमाएगा? ऑब्वियसली सैलरी जब खर्चा कम होगा तब. सो हेंस ब्रांड रेवेन्यू, कंपनी का रेवेन्यू कितनी भी हो लेकिन सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होती है. अब आप सोचोगे सर आईआईएम तो बहुत ज्यादा वहां पर सैलरी होती है आईआईएम्स में. बट प्लीज नोट, आईआईएम्स में भी आपका पैकेज जो होता है, अगर किसी की सैलरी है साल की 1 करोड़ तो शायद उसकी वैल्यू होगी 5 करोड़ या मोर देन दैट. उसने कंपनी को करोड़ों का फायदा करवाया है तब जाके उसको 1 करोड़ की सैलरी मिलेगी. व्हाट दिस कंसेप्ट? सो आई एम राइटिंग हियर इंटरेस्ट पेड अकाउंट एक्सपेंस है, वो इनकम कब बनेगा?
हेलो, व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट मीन्स हमने क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट में सीखा था. सो व्हेन वी पे इंटरेस्ट, व्हेन वी टेक लोन, व्हेन वी टेक लोन, तब इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है. बट अगर हमने किसी को लोन दी है, वी हैव गिवन द मनी, देन इनकम रिसीव्ड अकाउंट हमारे लिए क्या बन जाएगा? इनकम. ओके, एंड ये कब होगा? व्हेन वी हैव गिवन लोन, जब हमने पैसे दिए हैं, देन इट इज आवर इनकम. अच्छा, रेंट का मैंने बता दिया ऑलरेडी ऊपर. रेंट पेड खर्चा है. रेंट रिसीव्ड इज व्हाट? इनकम. एक और एग्जांपल मैंने बताया था, कमीशन. कमीशन पेड, अगर आपने अपने एम्प्लॉय को कमीशन पे किया है, इट्स योर एक्सपेंस. लेकिन अगर आप बिजनेस में कुछ डील करते हो एंड यू गेट समथिंग एज ए कमीशन, देन कमीशन रिसीव्ड अकाउंट इज योर इनकम. सो गॉट दिस पॉइंट? एंड एक चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है, ऑल द एक्सपेंसेस हैव डेबिट बैलेंस. यानी जब भी खर्चा होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं. ओके, डेबिट एंड क्रेडिट, वी नो दैट these are two aspects, and these incomes have which balance? क्रेडिट बैलेंस. तो इन अकाउंटेंसी इनकम्स, जब भी आप इनकम जनरेट करते हो, यू नीड टू क्रेडिट इट. ओके, नाउ shall we start next type? Total 5 types है. Okay, 3A, here I should have written what? 3B, income account. Now let us discuss 3C, it is assets account. Now what is the asset? Asset means something of value जो आप के साथ काफी साल तक रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी. कैन आई से मशीनरी विल बी देयर विथ यू फॉर मेनी इयर्स? अब आप मुझे बताओ, आपके घर पे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप काफी सालों तक यूज करते हो? या आपके बिजनेस की बात करो, फॉरगेट अबाउट दिस, बिजनेस में बताओ, गिव मी एग्जांपल्स. प्लास्टिक्स नहीं चलेगा, प्लास्टिक से बनी हुई कोई चीज आप बताओ. फर्नीचर. यस, परफेक्ट आंसर. किसने बताया? फर्नीचर. वेरी गुड, सर लैंड. वेरी गुड, परफेक्ट एग्जांपल. लैंड. ओके, लेकिन सिर्फ लैंड, लैंड के ऊपर क्या होता है? इट इज कॉल्ड लैंड एंड बिल्डिंग. ओके, क्योंकि हम कुछ कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, तो यस, इट इज अवर एसेट. यानी जो चीज को आप बेच के बाद में पैसा कवर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एसेट. सर पर मशीनरी तो जैसे यूज होगी 5-6 साल तक और फिर बेचेंगे तो वो उसके तो कम पैसे मिलेंगे ना? यस, कम पैसे मिलेंगे. देयर इज द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन. बराबर. लेकिन ये जो भी चीज आपके बिजनेस में मोर देन 1 ईयर रहेगी, उसको हम एसेट कहेंगे. ओके, तो मशीनरी, मुझे बताइए, मशीनरी इज यूज्ड फॉर मेनी इयर्स. यस, सो एसेट्स will stay in the business for more than 1 year. तो याद रखिए, benefit of asset, I will write here,
बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। ये एसेट्स आपके बिजनेस में 1 साल से ज्यादा तक रहेंगे। अच्छा, एयर कंडीशनर एसेट्स होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा सर। यस, एयर कंडीशनर अकाउंट। अच्छा, स्टेपलर, स्टेपलर पता है? जी जी सर। तो वो एसेट्स होगा कि नहीं? वो भी काफी साल तक रहता है। होगा। ओके, एक्चुअली लॉजिकली होना चाहिए, बट अकाउंटेंसी में हम छोटी छोटी चीजों को एसेट्स में काउंट नहीं करते। समथिंग ऑफ वैल्यू होना चाहिए। एसेट की दूसरी कंडीशन क्या है? इट हैज टू बी समथिंग ऑफ वैल्यू। अब स्टेपलर आप बेच नहीं सकते। अब देखो, स्टेपलर बेचोगे, मेहनत कितनी है, सामने कस्टमर ढूंढने में जितना टाइम जाएगा उससे उतना तो नुकसान हो जाएगा हमारा। तो छोटी छोटी चीजें एसेट्स में काउंट नहीं होगी, लेकिन वो एक्सपेंस में काउंट हो जाएगी, स्टेशनरी एक्सपेंस। ओके, तो जो भी बुक्स, यानी काफी बार ऐसा होगा कि कोई ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो बिजनेस में काफी साल तक रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने यूपिन सुना है? यूपिन, पेजेस यस को सर। बाइंड करने के लिए। तो पिंस का यस सर। पूरा बॉक्स ले लिया, बट ये सभी स्टेशनरी एक्सपेंस में खर्चा की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू कम है। तो एसेट्स के केस में वैल्यू कैसी होनी चाहिए? हाई वैल्यू। अच्छा, आपने बिजनेस में एक व्हीकल लिया है, ओके, तो क्या वो एसेट है? डिलीवरी करने के लिए एक ट्रक लिया है। यस सर। Yes. So I can write here vehicle account. So are you able to understand? Commerce में accountancy is basically common sense. And पूरा accounts is based on debit and credit. But फिर भी बच्चों को confusion होता है, okay? So if your foundations are strong, काफी जन है ना 11th में ट्यूशंस नहीं करते, उनको लगता है 11th इजी है, हो जाएगा, 12th में कर लेंगे। मेरे पास टोटल डीपीएस से ऐसे 3 बच्चे हैं जो बहुत ही वीक है, उनको कुछ भी पता नहीं है, ओके, और 12th में हालत खराब होती है टीचर की। ओके, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, बट पढ़ना जरूरी है। देन 4th टाइप, देखो, एसेट का मतलब है फ्यूचर में पैसे मिलेंगे। एसेट का रिवर्स होता है, इट इज कॉल्ड लायबिलिटी। ओके, लायबिलिटी अकाउंट। मुझे बताओ, इसमें मैं कहूंगा कि अमाउंट पेबल इन फ्यूचर। तो बताओ बिजनेस में कब ऐसा होगा, क्या हो सकती है लायबिलिटी जिसमें फ्यूचर में पैसा पे करना पड़ेगा? सर लोन। Yes, very good. Okay, so बैंक लोन अकाउंट, बैंक से जो लोन ली है वो लायबिलिटी है, बिकॉज हमें पे करनी पड़ेगी फ्यूचर में। ओके, सो एसेट्स ज्यादा होते हैं, लायबिलिटीज कम होती है। बोलो। सर जैसे अभी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन है और फैक्ट्री में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चालू है, तो उसके जो चार्जेस होंगे वो तो लगेंगे ही ना, तो वो Yes. भी एक काइंड ऑफ लायबिलिटी हुआ ना। नहीं, अब देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका बिल वो खर्चा है, और अगर आपने पे नहीं किया है तो वो लायबिलिटी भी है। इन अदर वर्ड्स, अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब एक ही जर्नल एंट्री में इट इज पॉसिबल दैट हम खर्चा भी बुक करें एंड लायबिलिटी भी बुक करें। ओके, तो योर लॉजिक इज करेक्ट, जो भी खर्चा पे नहीं हुआ है इट इज अवर लायबिलिटी। एंड वेरी गुड एग्जांपल, तो मैं यहां पर रखूंगा एक्सपेंसेस अनपेड, या फिर अनपेड। चलो मान लेते पगार बाकी है, लॉकडाउन में काफी बार ऐसा होता है पगार लेट होता है, तो अनपेड
सैलरी अकाउंट, यस। अनपेड का दूसरा वर्ड है, इट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मीन्स अनपेड, दोनों का मतलब सेम है। तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, तो ये हमारी लायबिलिटी है। व्हेन आई से आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इसका दूसरा वर्ड हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल। व्हेन आई से पेएबल यानी पे करना बाकी है, तो ये हमारी लायबिलिटी है। सो जो भी खर्चा पे नहीं हुआ है वो हमारी लायबिलिटी है। आर यू क्लियर? सर लायबिलिटी मतलब जो भी खर्चा है, या मतलब जिसमें हमें पैसे डालना पड़ रहा है लेकिन वो सामने प्रॉफिट नहीं दे रहा? Liability means we have obligation. Obligation means we are supposed to pay. Money will go out of our pocket. For example, bank loan. भले अभी तो पैसा आ गया है, लोन ली थी, लेकिन फ्यूचर में we need to repay. We need to pay the bank back. यानी पैसे जाएंगे, yes or no? तो ये liability है. Okay. ऐसे तो Like सर sir- बिजनेस ट्रांजैक्शन में भी होगा। हाँ, चलो एक फिर से रिपीट करो, ध्यान आपका क्वेश्चन। जी, जैसे कि सर मैं कहीं बाहर पढ़ने गया हूँ, अहमदाबाद या कहीं पे, और वहाँ पे मैं रेंट पे रहता हूँ। तो अभी मैं लॉकडाउन में घर पे आ गया, तो 2-3 महीने से मेरा रेंट तो है ही, तो वो तो मुझे पे करना ही पड़ेगा, भले मैंने यूज किया नहीं किया। यस, तो वो मेरे लिए लायबिलिटी हुआ ना? yes, it is your liability because for you it is unpaid expense, unpaid rent. आपके लिए वर्ड क्या होगा? unpaid rent. रेंट। खर्चा कोई भी हो बट नेचर समझो, unpaid expense is liability. Are you clear? Okay. एक्सपेंस का नाम चेंज हो सकता है। yes, स्वयं, do you have any question? अमन एकदम क्लियर अब तक? Okay, and now the last one. Okay, 5 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। लास्ट वन इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। अब ये आपके लिए नया होगा। ओके, नाउ कैपिटल, यस। सर लायबिलिटी में सर बिजनेस ट्रांजैक्शंस में भी आएंगे ना? वो कौन सा ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो कोई एग्जांपल बताइए। जैसे ये बिजनेस के ट्रांजेक्शन हुए, लोन ली तो लायबिलिटी है, कोई खर्चा पे नहीं हुआ है, कर लिया है खर्चा लेकिन पे नहीं किया है तो लायबिलिटी है। ओके, सो इट विल डिपेंड। नाउ वी हैव कैपिटल अकाउंट। नाउ कैपिटल का मतलब क्या है? अमाउंट ब्रॉट इनटू बिजनेस बाय ओनर। देखो, बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फ्री में होता है या पैसे लगते हैं? बहुत पैसे लगेंगे। एंड समटाइम्स बिजनेस में कुछ चीजें भी आती है। ओके, लेट्स से फर्नीचर एक्सेट्रा। सो अमाउंट और गुड्स, यहां पर गुड्स, गुड्स का मतलब है जो चीज में आप डील करते हो, दैट इज कॉल्ड गुड्स। अच्छा, जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, तारक मेहता सीरियल में जेठा के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स गुड्स होगी, क्योंकि वो क्या बेचता है? इलेक्ट्रिक आइटम्स, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वो उसके लिए गुड्स हो जाएगा। मान लेते हैं मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, तो मेरे लिए गुड्स क्या होगा? फर्नीचर। यस, सो अमाउंट या फिर गुड्स या फिर एसेट्स। हो सकता है कि मेरे घर पे एक ऑलरेडी एयर कंडीशनर था, वो मैंने शिफ्ट कर दिया बिजनेस में, यानी बिजनेस में मैंने एसेट लाया। तो बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे या बाद में भी अगर ओनर, ये खास याद रखना है, ओनर, इफ ओनर इज ब्रिंगिंग समथिंग, बिजनेस में कुछ वो लाता है, देन इट इज रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। ओके,
एग्जाम्पल लेट से मैं यहां पर लिखता हूं कि रवि, सर जैसे बिजनेस में खर्चा होना। हाँ बिजनेस में उसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। ब्रॉट इन का मतलब है इन्वेस्टेड, उसके बाद जैसे तो सर खर्च हो जाएंगे। जैसे सर उन्होंने गुड्स में टेबल और चेयर खरीदे उनके ऑफिस में स्टाफ के लिए, तो वो भी इसी में आएगा ना? यस, नहीं वो नहीं, देखो उसने गुड्स खरीदा, बराबर, हम्म तो उसने गुड्स खरीदा इसका मतलब पैसे तो उसके पास थे ऑलरेडी, हम्म तो पैसे आए उसको हम कहेंगे कैपिटल। पैसे के बाद आप जो भी करो वो तो ऊपर कवर होगा, कोई भी। एक्सपेंस में। हाँ ओके, लायबिलिटी हो सकती है, एक्सपेंस हो सकता है। तो राइट नाउ जो आप बोल रहे हो कि चेयर ली का मतलब है कि आपने एसेट्स दिया है, तो इट इज एसेट्स। हम्म ओके, तो सर यहाँ एक बार पर वापस कैपिटल कब होगा? अगर वो घर की, उसके घर में ऑलरेडी चेयर थी या उसके घर में ऑलरेडी फर्नीचर था, वो बिजनेस में लाया तो वो कैपिटल है, हाँ हाँ बराबर। लेकिन बिजनेस में पैसे हैं और आप कोई चीज लेते हो तो वो एसेट है। देखो धीरे धीरे क्लियर हाँ। होगा, लेकिन आई होप अभी आप डिफरेंस समझ पा रहे हो। जी। ओके, तो वही एग्जांपल है, देखो क्या होता है, रवि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश rupees 5 lakhs, then furniture, या इसको मैं यहां पर लिखूंगा होम फर्नीचर, घर का फर्नीचर बिजनेस में लाया है, ही स्टार्टेड द बिजनेस, वो 1 लाख का फर्नीचर लाया है। ओके, एंड होम एसी, एयर कंडीशनर, घर का एसी भी उसने बिजनेस के लिए वो यूज कर रहा है, जिसकी कीमत है 30,000। तो देयरफॉर टोटल कैपिटल कितना होगा मुझे बताइए। 6,30,000। Yes, total capital will be the total of this, it will be 6,30,000। ओके, यानी बिजनेस में स्टार्टिंग में जितने पैसे डाल रहे हैं ओनर कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहा है या फिर कोई चीजें ला रहा है या कोई एसेट्स ला रहा है, देन इट इज कैपिटल। ओके, तो कैपिटल एंड बाकी लायबिलिटी दोनों सेम है। अब आपको लगेगा सर ये क्या बात कर रहे हो, ये दोनों तो अलग अलग है। दोनों सेम है, दोनों में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, वो समझो। लायबिलिटी मींस बिजनेस को अमाउंट पे करने हैं आउटसाइडर को, ओके, पेबल टू आउटसाइडर। एंड कैपिटल ये भी एक टाइप की लायबिलिटी है, बट यहां पर इट इज पेबल टू ओनर। अब देखो लॉजिक समझो। अच्छा मान लेते हैं यहां पर ये ध्यान है, ध्यान स्टार्टेड बिजनेस विद दिस, उसने टोटल कितने पैसे या फिर चीजें लगाई हैं बिजनेस में? 6,30,000। ओके, तो ध्यान, आप बिजनेस से इतने पैसे कमाने की कोशिश करोगे या नहीं करोगे? जी करूंगा सर। कि ये पैसे जो आपने बिजनेस में दिए हैं वो कैन आई से यू विल टेक बैक जब प्रॉफिट होगा? यस। यस, तो जितने पैसे हम लगाते हैं उतने रिटर्न लेने की भी कोशिश करते हैं फ्यूचर में। तो याद रखिए कैपिटल का मतलब ये है कि बिजनेसमैन ने जितने पैसे लगाए हैं वो बाद में बिजनेस के लिए बिजनेस में से जाने वाले हैं। तो हम यहाँ पर अकाउंटिंग करते हैं फॉर द बिजनेस, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, उसके मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू, यानी बिजनेस सर जैसे रवि ने इन्वेस्ट किया ये, तो वो तो मतलब उसने रवि ने खुद के रिस्क पे किया, और लायबिलिटी में जैसे उसने लोन ली और नहीं दी तो उसके ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं। यस, इसीलिए लायबिलिटी बैंक आउटसाइडर है इसलिए वो लायबिलिटी है। ओके, अब ये कंसेप्ट जो है वो आपके कल क्लियर होंगे, अभी हार्डली कुछ सेकंड्स बाकी है।